आगे के सम्स कराता हूं मैं आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 18। सर 18 हो गया। 18 हो गया, ओके। 19 नंबर, z is a complex number, then what about z inverse into z? z inverse मतलब 1 upon z हुआ into z, z and z cancel, so answer is equal to 1. 1. So 1 is your answer. Question number 19 clear. 20 number, the complex numbers that satisfy this condition. The condition is given I plus z inward upon I minus z inward equal to 1. Cross please. I plus z equal to I minus z. Now z का वैल्यू रखते हैं। z होता है x plus iy, you know well. z is x plus iy. So same thing here, x plus iy. Now real terms को कलेक्ट किया, x is a real term. Imaginary with i जो है वो imaginary होता है, y plus 1 into I. Same thing here, real is a minus x, imaginary I का 1 और यहां से minus y I बार. How to solve in modulus complex number? Real part का square plus में imaginary का square and root. The same thing modulus of this real part का square मतलब minus x का square plus x square and the imaginary का square. Imaginary means I का coefficient. Again, squaring both sides, root cancel. So we have x square. Open this bracket. Y square plus 2y plus 1 equal to x square. Open this bracket. 1 minus 2y plus y square. X square cancel. Y square cancel. 1 and 1 cancel. So remaining term is 2y is equal to minus 2y. This is 4y equal to 0. So only y equal to 0. Now what is the z? Z is x plus iy. But उसमें y तो 0 है, so only x. Only x मतलब होता है real part of z. Z का आंसर आया है real. आपको क्वेश्चन 19 में दिया गया सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 बनेगा, x एक्सिस बनेगा, y एक्सिस बनेगा, क्या लाइन बनेगी? We know well, अगर y 0 है तो कौन सी एक्सिस होती है? If x 0 and y 0, we know the condition. X axis and y axis. X axis मतलब y equal to 0 होता है, y axis का मतलब x equal to 0 होता है. हमको y 0 मिला है, मतलब हमारा आंसर है x axis. So option number B, Bombay. Screenshot please. Question number 19 and 20. That 21 number as a rule याद रखेंगे. Modulus z1 plus z2 equal to mod z1 plus mod z2 कब होता है? इनइक्वालिटी रूल ये कहता है मॉड में z1 प्लस z2 दिया गया है आपको, मॉडुलस. अगर आप उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू आप. Suppose that we have a 3 complex number z1 plus z2 plus z3 in a mod divided in 3 parts, mod z1, mod z2, mod z2 3 sorry. So complete z1 z2 z3 को 3 parts में divide किया addition में, so we have always less than or equal to. This is a rule. The same thing for and complex number and division, always less than or equal to. And what about the difference? अगर माइनस का साइन है तो रूल क्या कहता है? डिवाइड इन 2 पार्ट, फॉर अ माइनस तो साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा. तो अगर आप प्लस में 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो लेस देन और इक्वल टू आएगा, माइनस में 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा.
नाउ एज अ नोट याद रखेंगे, अगर आपके पास आर्गुमेंट है जो सेम है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट सेम है, देन आप एडिशन में दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए तो इक्वल का साइन आएगा। मतलब ये जो आपका साइन है लेस देन और इक्वल, अगर दोनों के आर्गुमेंट सेम हुए तो इक्वल आएगा, और आर्गुमेंट सेम नहीं है तो ऑलवेज लेस देन का साइन आएगा। तो एज अ रूल याद रखेंगे, टू कॉम्प्लेक्स नंबर इन वन मॉड डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, इक्वल टू साइन तभी आएगा जब आर्गुमेंट सेम होंगे, और अगर आर्गुमेंट सेम नहीं है देन ऑलवेज आंसर लेस देन आएगा। सो योर 21 क्वेश्चन एज अ रूल आपका ऑप्शन सी कहता है, इफ z1 plus z2 in mod equal to mod z1 plus mod z2 if and only possible if argument of z1 is equal to argument of z2. So question number 21 clear friends, your answer is option C. Now 22 number, वो सर yes friends, आर्गुमेंट सेम हो तो सब्ट्रैक्शन में भी चलता है। subtraction there is no rule, subtraction only get the not equal to, equal to अगर इसमें भी मोस्ट ऑफ चांसेस है बट कहीं ऐसा देखा नहीं है मैंने, argument same then z1 minus z2 is not always equal to mod z1 minus mod z2. for subtraction ऐसा रूल नहीं है, ये आपको जस्ट ऐसे नॉलेज के लिए कहा है मैंने, सब्ट्रैक्शन में नहीं है बट एडिशन में ऐसा रूल है। ये जो अभी मैंने आपको लिख के दिया, इसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने का फंडा होता है, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं थोड़ी देर में। अभी आप जस्ट एडिशन के लिए ये फॉर्म याद रखेंगे, सब्ट्रैक्शन में ऐसा कोई रूल है नहीं कि वो इक्वल कब होगा, बट एडिशन में कंफर्म है, आर्ग्यूमेंट सेम जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल हो जाएगा, और अगर आर्ग्यूमेंट सेम नहीं है तो लेस देन रहेगा ऑलवेज। वेल 22 नंबर सम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, find the minimum and the maximum value, how to find, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर मैं रफ कर देता हूं। ओके ठीक रहता, यहां पर एक मॉड्यूलस का साइन और लगाना पड़ेगा मुझे, रीजन मैं आपको समझा देता हूं। जब दो नंबर को माइनस करते हैं तो आंसर नेगेटिव होने के चांस हो सकते हैं, पॉजिटिव भी आ सकता है, जैसे 7 माइनस 6 करो तो 1 आएगा, और 6 माइनस 7 करेंगे तो आंसर क्या आएगा -1। तो ये मॉड्यूलस क्यों लगा रहे हैं हम लोग एज अ प्रोटेक्शन, क्योंकि उसका आंसर एक मॉड के साथ कंपेयर होने वाला है, तो मॉड का आंसर कभी किसी नेगेटिव नंबर के साथ कंपेयर नहीं हो सकता, तो जस्ट फॉर प्रोटेक्शन हम लोगों ने यहाँ पर मॉड लगा दिया है। इसको कैसे यूज किया जाता है उसको थोड़ा समझते हैं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, द कंडीशन इज z plus 3 less than or equal to 8, then find minimum and maximum value of z plus 10. Z plus 3 less than equal to 8, this is the given condition, then find the minimum and the maximum value of z plus 10 in mod. How to find? अगर आपको मैक्सिमम फाइंड करना है प्लस वाली कंडीशन यूज करेंगे, मिनिमम फाइंड करना है माइनस वाली कंडीशन यूज करेंगे। फॉर द फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू आप प्लस वाला कंडीशन यूज करेंगे, माइनस कब यूज करेंगे जब आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले कैलकुलेशन करते हैं फॉर द मैक्सिमम, मैक्सिमम करना है आपको, किसके लिए मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, इस बंदे के लिए। स्टार्ट करते हैं, z plus 10 लिखा इन मॉड, अब जो कंडीशन दी है वो अरेंज करके दो, z plus 3 plus 7 लिख सकता हूं मैं, ये इक्वल टू का साइन रहेगा, जस्ट मैंने 10 की जगह क्या लिखा 3 plus 7। नाउ सम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, फर्स्ट एंड सेकंड, z plus 3 and 7 बीच में प्लस है। आपने देखा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, वो भी एडिशन में। कॉम्प्लेक्स का मॉड दो पार्ट्स में डिवाइड होता है तो साइन लेस देन और इक्वल टू हो जाता है, तो ये साइन बदल गया लेस देन और इक्वल टू। नाउ वी नो दैट z plus 3 जो है वो 8 से लेस देन और इक्वल टू है, तो यहाँ 8 लिखा, प्लस में 7 का मॉड 7 होता है, एंड 8 plus 7 is what 15। सो z plus 10 का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा 15। व्हाई मैक्सिमम वैल्यू, क्लियर पिक्चर है,
z plus tan is less than or equal to 15. That means the maximum value of z plus tan is 15. Now for the minimum value आप minus arrange करेंगे. How to find the minimum value? सर ये For a बताने minimum. बोला For a minimum value we want z plus tan minimum value. So z plus tan लिखा. Given condition z plus 3 है तो आपने z plus 3 plus 7 लिखा. मुझे जब मिनिमम चाहिए तो माइनस अरेंज करना है, मतलब यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होना चाहिए. तो z plus 3 नॉट 7 को भी माइनस में रखा. अगर माइनस को दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, अगर इसमें माइनस है दो पार्ट में डिवाइड होगा तो सिंबल बनेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू. यहाँ पर आएगा z plus 3 साइन बदल गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू, माइनस में -7 इन मॉड. अब आपको -7 इन मॉड का आंसर 7 लिखना है. ये z plus 3 रहेगा. मॉड ऑफ -7 कितना हो जाएगा 7. ओके, नाउ द कंडीशन इज व्हाट? कंडीशन क्या दी आपको कि z plus 3 लेस देन और इक्वल टू 8 और इसका आंसर कितना आया है -7. अगर ये वैल्यू इससे कम हो जाती है 8 और -7 में कौन ग्रेटर है? 8 बड़ा है, तो आपका आंसर जो है वो 0 हो जाएगा. मतलब इसका आंसर आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अगर ये वैल्यू लेस हो जाती है इससे तो आपका आंसर कुछ वैल्यू में आता. 8 is the bigger value of -7. That's why आंसर क्या लेंगे? ऑलवेज 0 लेंगे. और अगर यहाँ पर सपोज है -10 दिया होता, -10 और यहाँ पर आया होता 7, तो आपके लिए आंसर होता -7 + 7 = 3, तो आंसर 3 होता. ये वैल्यू अगर इससे छोटी है तो आंसर आएगा, पर अगर इससे बड़ी है तो आंसर ऑलवेज 0 हो जाएगा. मतलब z plus tan का जो मॉड्यूलस है उसकी मिनिमम वैल्यू 0 है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू 15 है. तो जब भी आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो तो प्लस वाली कंडीशन यूज करना है, और जब भी आपको मिनिमम निकालना है तो माइनस वाली कंडीशन यूज करना है. जो कंडीशन आपको दी गई है माइनस में, ये जो नंबर है वो उससे अगर ग्रेटर है तो आंसर 0, लेस देन है तो ही आपका आंसर आएगा. इसका स्क्रीनशॉट लो. एक और एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, पिक्चर क्लियर हो जाएगा. सर. यस सर एक बार मिनिमम वाला वापस से कराओ. श्योर बेटा, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लो. ये जो मैंने आपको समझाया ना, ये थियरी का आंसर है. ये थियरी से दिया हुआ है, इसको यूज करके. अब अगर आपको ये थियरी का आंसर समझ में नहीं आता है तो मैं आपको एक और मेथड देता हूं. वन मोर मेथड टू फाइंड द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू. How to find minimum and maximum value? One more example. Let z minus 4 less than equal to 10. Then find minimum and maximum value of z plus 10. Answer. मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 में एक कंडीशन लिखवाई है. बताइए, व्हाट इज द रूल ऑफ mod x less than or equal to a? Yes, anyone please? x lies between -a to +a. Very good बेटा, वेरी गुड. ये एक फॉर्मूला है. तो मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करने के लिए आप चैप्टर 6 का यूज भी कर सकते हो. इसको उठा लो जो दिया हुआ है, z minus 4 in mod less than equal to 10. Compare with this. a की जगह पर कौन है? in place of a है 10, तो आंसर आएगा -10 से +10, -10 से +10. in place of x कौन है? z minus 4 है. जस्ट मैंने ये थियरी कंपेयर की. जहां पर x है वहां z minus 4 है, जहां a है वहां पर मैंने 10 लिखा. नाउ मुझे चाहिए z plus 10. ओके, -4 में कितना ऐड करूंगा तो 10 होगा, +14. Yes. यहाँ पर भी आपने +14 किया, यहाँ पर भी आपने +14 किया. नेक्स्ट प्लीज. -10 and +14 is 4. z minus 4 plus 14 is +10. 10 plus 14 is 24.
इन अ मॉड्यूलस वी वांट द मॉड्यूलस फॉर्म, मॉड्यूलस दिया, 24 को भी मॉड्यूलस में ले लिया और 4 को भी मॉड्यूलस में ले लिया। 4 का मॉड्यूलस 4 होता है, 24 का मॉड्यूलस 24 होता है। नाउ व्हाट इज योर आंसर? मिनिमम वैल्यू कितनी है? 4 है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 24 है। बोलिए फ्रेंड्स, ये मेथड क्लियर है या पीछे वाला मेथड अच्छा लगा? व्हाट डू यू वांट? ये वाला ज्यादा अच्छा। ठीक है, सो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। यस अमरुद, अभी पिक्चर क्लियर? एंड निराली? सर यस सर। यस। ये सब जगह एप्लीकेबल है ऐसे सम्स में? अगर यहाँ प्लस से प्लस है तो आंसर प्लस में ही रहेगा। यहाँ प्लस से प्लस है, 4 से 24 आया तो वही आंसर है। माइनस से माइनस है तो घूम जाएगा, जो मैं आपको सिखा चुका हूं पहले। हाँ सर वो तो पता है। माइनस से माइनस है तो घूम जाएगा, और माइनस से प्लस है तो 0 से मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है। जैसे यहाँ पर है -4, यहाँ है 24, तो आंसर आएगा मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 24। अंडरस्टैंड? जो मैं आपको पहले चैप्टर 3 में सिखा चुका हूं। प्लस से प्लस है तो वही आंसर, माइनस से माइनस है तो घूम जाएगा, और माइनस से प्लस है तो मिनिमम वैल्यू ऑलवेज 0, मैक्सिमम वैल्यू जो है मॉड्यूलस के साथ जो लार्ज वैल्यू है वो। ट्रिगो के रूल्स लगेंगे जो ट्रिगो में सीखे हम लोगों ने। ओके, स्क्रीनशॉट प्लीज। अब जो सम हमारे सामने है नंबर 22, उसको कैसे सॉल्व करना है प्लीज समझ लेना बेटा। उसका एक डायरेक्ट शॉर्टकट है। इस टाइप का कोई भी सम आए और अगर आपको मिनिमम वैल्यू की डिसाइड, ये सम ऑलवेज मिनिमम वैल्यू के लिए ही आएगा, मैक्सिमम के लिए नहीं आएगा। z-2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिससे रिलेटेड दो लोग हैं। एक है z-1 इन मॉड और दूसरा है z-5 इन मॉड। आपका सम जब भी इस टाइप का है तो डायरेक्ट उसका एक आंसर है, डायरेक्ट मेथड है। इसमें से एक नंबर उठाओ, वो कौन सा है? 2 है। इसमें से नंबर उठाया वो 1 है, इसका नंबर 5 है। ऑलवेज बीच में माइनस ही होना चाहिए। अगर यहाँ प्लस दिया होता तो यहाँ मैं -1 लेता, यहाँ प्लस दिया होता तो यहाँ -5 लेता, यहाँ प्लस दिया होता तो यहाँ -2 लेता। अब इसका डायरेक्ट आंसर क्या है इस टाइप के सम का? इन दोनों को ऐड करो, 2 and 1 what? 3 by 2, and the second number 2 and 5 कितना? 7 divided by 2। ये डायरेक्ट मेथड है मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने का। इस टाइप का कोई भी सम दिया है ऑलवेज इसी तरह से सेट होगा। हाउ टू फाइंड? इसका नंबर उठा लिया 2, इसका नंबर ले लिया 1, इसका नंबर ले लिया 5। अब इन दोनों का एडिशन बाय दिस नंबर, इन दोनों का एडिशन बाय दिस नंबर। ये दो वैल्यू, एक 3/2 और एक 7/2। सम का क्वेश्चन था if z-2 is the minimum of this, then z is a complex number, then what is the real part of a z? 3/2 हो सकता है या फिर 7/2 हो सकता है। ये मिनिमम अगर दिया गया है तो डायरेक्ट मेथड इस तरह से आएगा आंसर। डन फ्रेंड्स, पिक्चर क्लियर? क्वेश्चन नंबर है ये 22। मैंने जो आपको मिनिमम मैक्सिमम सिखाया वो और ये अलग अलग चीज है, ध्यान रखना। मैंने जो सिखाया मिनिमम मैक्सिमम वो कुछ इस तरह से था। If z plus 7 less than or equal to 8, then find minimum and maximum value of z minus 15 in mod. How to start this sum? जो कंडीशन दी है उसको उठा लो। z plus 7 in mod less than equal to 8। चैप्टर नंबर 6 के हिसाब से ये है -8 less than or equal to z plus 7 less than or equal to +8। मुझे z plus 7 में -15 चाहिए तो -22 करना पड़ेगा। तो इसमें भी -22 करूंगा, इसमें भी -22 करूंगा। -8 -22 is -30। This is z -15, 8 -22। आप लोग को समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं?
Okay. Yes, sir. Yes, now sir. इसको मॉड में लिया तो पिक्चर बदल जाएगा, क्योंकि मॉड ऑफ -30 30 होता है, मॉड ऑफ -14 + 14, तो छोटा नंबर यहाँ आ जाएगा, बड़ा नंबर यहाँ चला जाएगा। मैंने आपसे कहा था माइनस से माइनस है, पिक्चर घूम जाएगा। सो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू बेटा? 14। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? 30। ये सिंगल नंबर्स के लिए कंडीशन दी गई है, और ऐसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए जाए लाइक दिस, और मिनिमम की बात की जाए तो ये उसका डायरेक्ट मेथड है। ये सिंगल के लिए बात की गई है, तो आपको मिनिमम भी मिलेगा, मैक्सिमम भी मिलेगा। और मिनिमम के लिए दो नंबर दिए गए होंगे ऐसे, तो ये उसका डायरेक्ट मेथड है। दिस इज योर सम नंबर 22, और ये एक एक्स्ट्रा सम। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज, एंड क्वेश्चन नंबर 23 रीड करिए। Okay, sum number 23. Z x plus iy होता है, z is x plus iy। एक कंडीशन दी गई है 3z minus 1 in mod equal to 3z minus 2 in mod, 3z minus 1 in mod and 3z minus 2 in mod। Okay, z का वैल्यू रखा x plus iy, z का वैल्यू लिया x plus iy, 3 multiply 3x 3y into I minus 1, x रियल पार्ट ले लिया x minus 2 और इमेजिनरी ले लिया। इसमें रियल कौन है? 3x minus 1 है। इमेजिनरी कौन है? 3y। इन मॉड, अब कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस हाउ टू सॉल्व? इन रूट रियल का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी का स्क्वायर। द सेम थिंग हियर, 3 बार है। इन अ मॉड अ कॉम्प्लेक्स नंबर रियल का स्क्वायर इमेजिनरी का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये रूट चला जाएगा एंड एक्सपांड। 3x square minus 6x plus 1, 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 in a bracket expand, x square minus 4x plus 4 plus y square। Now calculation please, 9x square and 9x square cancel, तो थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ बेटा। 9x square minus 6x plus 1 plus में 9y square equal to 9 multiply with this 9x square 36x 36 plus 9y square, ये कैंसल, ये भी कैंसल, 36 यहाँ पर गया तो 30x हो गया, फिर 1 वहां पर गया तो 35 हो गया। आई थिंक कुछ बचता नहीं है, सब कैंसल है। यस, सो ओनली x is equal to 35 upon 30, so x is equal to 7/6, only x present। आपको ऑप्शंस दिए हैं, y axis a circle, x axis parallel to y axis। चैप्टर 6 मैंने आपको ग्राफ सिखाया था, अगर आपको याद हो। x is equal to नंबर दिया हो तो उसके लिए मैंने लिखा था वर्टिकल लाइन, एंड वर्टिकल लाइन ऑलवेज पैरेलल टू y axis। ये हो गया उसका ग्राफ, x equal to 7/6। क्वेश्चन नंबर कौन सा सेट होगा? डी डैल। अगर x इक्वल टू नंबर आता है तो उसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं, y इक्वल टू नंबर आएगा उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। x आए, y आए और कांस्टेंट आए तो लाइन पासेस थ्रू ऑरिजिन होता है, और x भी आए, y भी आए, कांस्टेंट भी आए तो लाइन बोलते हैं उसको स्ट्रेट लाइन, ओनली अ स्ट्रेट लाइन। सो अभी यहाँ पर ओनली x इक्वल टू नंबर है, दैट्स व्हाई ये एक वर्टिकल लाइन है, एंड वर्टिकल लाइन ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस। यस बेटा, व्हाट्स द डाउट? सर ये ग्राफ वाला फिर से बताओ। चैप्टर 6 याद है आपको बेटा? हाँ सर। What is the meaning of vertical line? How to present x equal to 7/6 in a graph paper by using chapter 6?
हेलो, हाँ सर। आप x इक्वल टू 7/6 को ग्राफ पेपर पर कैसे प्लॉट करेंगे बाय यूजिंग चैप्टर 6? आपको ग्राफ याद है चैप्टर 6 के? नहीं सर। तो फिर कहां से आएगा? क्यों भूल गए आप? मैंने आपसे सिखाया था आपको, अगर x इक्वल टू नंबर है, ओनली x प्रेजेंट, y इज नॉट देयर, तो उसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं, एंड वर्टिकल लाइन ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस होती है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ। और अगर सिर्फ y और x एब्सेंट है तो उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। x भी है, y भी है और कांस्टेंट एब्सेंट है, उसको लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन कहा जाता है। जितना पढ़ाया जाए वो याद रहना चाहिए माइंड में। इज दैट क्लियर? स्क्रीनशॉट बेस नंबर 23. So 23, your answer is option number D. और Okay, 24 number. सर Yes. सर 22 में जो दिया है उसमें तीनों की साइन सेम ही होनी चाहिए कि अलग अलग चलेगी? Which number? 22 में तीनों जो मोड में नंबर है उनकी साइन सेम होनी चाहिए कि अलग अलग? नहीं, अलग अलग हो सकती है, प्लस भी हो सकता है। मैंने आपसे कहा अगर प्लस है तो माइनस लेना, और माइनस है तो प्लस लेना है, चैप्टर नंबर 6 की तरह। ओके। ओके, यस। नाउ सम नंबर 24। उसके पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज याद दिला दूं। z स्क्वायर इज ऑलवेज z इंटू z बार होता है, am I right? यस। z square in mod always a z into z bar, याद रखना। 24 number, we have z minus a in mod upon z plus a bar in a mod equal to 1. z and a दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है। z minus a in mod, cross multiplication please, z plus a bar in mod, squaring both the sides. Now compare with this property. Square is always z into z bar. Z into z bar. The same thing here. Z into z bar. आपने ये वाली प्रॉपर्टी यूज की है, स्क्वायर इज z into z bar, मतलब जो z दिया है वो इंटू में उसका बार। ये पूरा एक z है और उसका ये बार, ये पूरा एक z है और ये उसका बार। Now z minus a, we know that complete बार को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे मैंने 2-3 सम्स कराए थे आप। कंप्लीट बार डिवाइड इन टू पार्ट, z प्लस a बार, सेम थिंग हियर, डिवाइड इन टू पार्ट किया तो z बार, कंजुगेट का कंजुगेट कैंसिल हो जाता है। प्रॉपर्टी एक तो ये वाली यूज कर रहा हूं मैं, कंप्लीट बार इज z1 बार माइनस z2 बार। अगर प्लस दिया है तब भी यही होता है, z1 बार प्लस z2 बार। मल्टीप्लिकेशन दिया है तब भी यही होता है, और अगर डिवीजन दिया है तब भी यही होता है। ये सब प्रॉपर्टीज है। और एक प्रॉपर्टी जो मैंने अभी यहाँ यूज की है कि भाई कंजुगेट का कंजुगेट z होता है, कंजुगेट का कंजुगेट ऑलवेज z। यहाँ पर a बार का बार a हो गया, अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, z इंटू z बार, z इंटू a बार, a इंटू z बार, माइनस माइनस प्लस a इंटू a बार, z इंटू z बार, z इंटू a बार इंटू z बार, a इंटू a बार। ये कैंसल हो गया, z इंटू z बार कैंसल हो गया, ये दोनों जो माइनस है उसको वहां ले जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे। वहां पर मेरे पास है z a, वहां मेरे पास है a बार z बार, ये दोनों टर्म वहां पे जाएंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, z a बार a z बार इक्वल टू 0। z a और z a बार, इन दोनों में से z कॉमन, z कॉमन, कैलकुलेशन यहां पर पहुंच गया।
इन दोनों में से z कॉमन तो बचता है a प्लस a बार। इन दोनों में से z बार कॉमन तो बचता है a प्लस a बार। अब a प्लस a बार कॉमन तो बचता है z प्लस z बार। नाउ प्लीज सेट योर क्वेश्चन। रियल पार्ट ऑफ a इज नॉट जीरो गिवन। आपको सम बताना है कि x एक्सिस है, y एक्सिस है, स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू a है या नन ऑफ दिस है। यहाँ पर a प्लस a बार जीरो हुआ, z प्लस z बार जीरो हुआ। कमॉन फ्रेंड्स, z प्लस z बार क्या होता है? वन मोर प्रॉपर्टी, एक और फॉर्मूला आया है। ये सब रूल्स है बेटा, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, रूल नंबर 5, रूल नंबर 6। z प्लस z बार ऑलवेज होता है 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। z माइनस z बार होता है 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। वाई? ऐसा क्यों? कॉमन सेंस। आप लगा के देखिए, z होता है x प्लस आई वाई, z बार होता है x माइनस आई वाई। दोनों को ऐड करके देखो, व्हाट इज एडिशन ऑफ x प्लस आई वाई एंड x माइनस आई वाई? 2x। 2x का मतलब होता है 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। तो आप देख सकते हैं कि z प्लस z बार जीरो आया, मतलब रियल पार्ट ऑफ z जीरो होगा। रियल पार्ट ऑफ z क्या होता है? व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ z? x। x जीरो का मतलब कौन सी एक्सिस होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x जीरो? y एक्सिस। योर आंसर इज बी, बॉम्बे। इसका कोई यूज नहीं हुआ, पर यहां से आंसर आया z प्लस z बार से। उसने पूछा था कि अगर ये कंडीशन दी जाए तो क्या बनेगा, x एक्सिस, y एक्सिस या वर्टिकल लाइन? तो आपका आंसर आया y एक्सिस बनेगी। ये सारे जो प्रॉपर्टीज मैंने लिखी 1 to 7 तक, ये सब के सब इंपॉर्टेंट। स्क्रीनशॉट प्लीज। लेक्चर कट होगा, रिजॉइन करिएगा प्लीज। स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके, क्वेश्चन नंबर 25 रीड करिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विदाउट सॉल्विंग हम उसका आंसर दे सकते हैं। जस्ट आप क्वेश्चन अच्छे से रीड करके देखिए। व्हाट इज द कंडीशन? जितने भी लैम्डास है उसका एडिशन इक्वल टू 1 है। सो व्हाट डू यू थिंक, लैम्डा की वैल्यू क्या रही होगी अगर सारे लैम्डा का एडिशन 1 आता है और लैम्डा आपको उसने बोला है ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू? सो आपके हिसाब से सारे लैम्डा की वैल्यू क्या रही होगी अप्रॉक्स? हेलो, 25 नंबर उसने आपसे कहा है जितने भी लैम्डा है वो सब पॉजिटिव है और सब का जो एडिशन है लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 डॉट 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 वो इक्वल टू 1 है। सारे लैम्डा पॉजिटिव हो और सबका टोटल 1 हो, ऐसा कब हो सकता है? लैम्डा का वैल्यू किसके बीच में रहा होगा? 0 to 1। यस, 0 to 1 के बीच में रहा होगा। दैट्स गुड। तो आपका आंसर हो गया। 0 से 1 के बीच में अगर लैम्डा है दैट मीन 0 पॉइंट समथिंग रहा होगा। 0 पॉइंट समथिंग मल्टीप्लाई विथ a1 a2 a3 अप टू an क्या रहेगा? प्लीज सर एक एग्जांपल देखते हैं। 0.1 मल्टीप्लाई विथ 5, व्हाट्स द आंसर? 0 पॉइंट समथिंग या सम? यस, 0 पॉइंट समथिंग। 0.01 मल्टीप्लाई विथ 10, आंसर 0 पॉइंट समथिंग। सो आपके हिसाब से ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, if lambda 1 plus lambda 2 plus dot dot lambda n is equal to 1, where lambda is between always 0 to 1 and multiply with something numbers a1 a2 a3 dot 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 an तक, तो इन सबका एडिशन क्या आएगा? इक्वल टू 1 आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा, 0 आएगा या लेस देन 1 आएगा? व्हाट डू यू थिंक फ्रेंड्स? Less than 1। Less than 1. That's good. Very good answer. 25 number. Your approximate answer is D. Delhi. Less than 1. Just because of this, आप लोगों ने थोड़ा सा assume किया. Assuming कैसे किया? Now, question number 26.
आर्गुमेंट जो है वो क्या था, जो हम लोगों ने टेक्स्ट बुक में सीखा उससे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं आपको। मैंने आपको ये सिखाया था zx प्लस आई वाई होता है। फर्स्ट फाइंड आउट रियल पार्ट ऑफ a zx, imaginary part of a zy, then you find out r, that means modulus z. How to find? X square plus y square in root. Then you find out cos alpha and sin alpha. How to find? X upon r, y upon r. Then you decided quadrant, first quadrant, second quadrant, third and fourth quadrant. अगर फर्स्ट है तो आर्गुमेंट का फॉर्मूला था अल्फा, सेकंड का था पाई माइनस अल्फा, थर्ड का था माइनस पाई प्लस अल्फा, एंड द फोर्थ इज अ माइनस अल्फा। सो आर्गुमेंट ऑफ z जो होता है, आर्गुमेंट ऑफ z इज थीटा। उसमें जो थीटा है वो माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में होता है। मतलब यूं चलता है, माइनस पाई यूं होता है, माइनस पाई से चलना स्टार्ट किया, जीरो पर आए, फिर हम लोग पाई पर पहुंचते हैं। ये हमारा चाल है एंटी क्लॉकवाइज में। ये आर्गुमेंट का सिस्टम है। थीटा ऑलवेज बिटवीन माइनस पाई से लेकर प्लस पाई। मतलब थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? यस फ्रेंड्स, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? क्या हो सकता है? पाई। एंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट? इज माइनस पाई। डन। सो कब होता है पाई और कब होता है माइनस पाई, जरा उसको भी याद से देख लेते हैं। z है x प्लस आई वाई। अगर x 0 हो जाए तो z बचता है आई वाई ओनली। इसमें दो पार्ट है। अगर y ग्रेटर देन 0 है, y लेस देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है तो जो थीटा है आपका, थीटा वो पाई बाय 2 होता है, और y अगर लेस देन 0 है तो थीटा आपका माइनस पाई बाय 2 होता है। ये मैंने आपको टेक्स्ट बुक में नहीं सिखाया था क्योंकि वहां वैलिड नहीं है, यहाँ पर वैलिड है। और अगर y 0 हो जाता है तो y 0 हो जाएगा तो आपके पास z बचेगा ओनली x। यहां से भी दो केस बनेंगे। अगर x पॉजिटिव है तो थीटा बनेगा 0, और अगर x नेगेटिव है तो थीटा बनेगा पाई। ऑलवेज याद रखना एज अ रूल। सो ये डायरेक्ट आंसर है आपके पास। अगर x 0 हो जाता है तो आई वाई बचेगा, उसमें y पॉजिटिव है तो डायरेक्ट आंसर पाई बाय 2, y नेगेटिव है डायरेक्ट आंसर माइनस पाई बाय 2, और अगर y 0 हो गया तो x बचेगा, x बचेगा तो x पॉजिटिव है तो डायरेक्ट आंसर 0, और अगर नेगेटिव है तो डायरेक्ट आंसर पाई। ये याद रखना, मैंने आपको पहले नहीं लिखा क्योंकि वहां वैलिड नहीं था, वहां पर हम लोग इसको फॉलो करते थे। अब और एक चीज नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। वन मोर थिंग, मान लीजिए ना तो x 0 है ना तो y 0 है, तब क्या करेंगे? तो उसका डायरेक्ट मेथड क्या कहता है? डायरेक्ट मेथड कहता है आप डायरेक्ट tan फाइंड आउट कर दीजिए, tan अल्फा, डायरेक्टली tan अल्फा, एंड द फॉर्मूला इज मॉड्यूलस y अपॉन x। यहां से आपको अल्फा मिल जाएगा, फिर आप क्वाड्रेंट के हिसाब से आंसर दे दीजिए। अल्फा पाई माइनस अल्फा माइनस पाई प्लस अल्फा एंड माइनस अल्फा। जो मैंने लिखा है मैं आपको उसके एग्जांपल देता हूं, पिक्चर क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल 1, z इज 7। बोले थीटा क्या? डायरेक्ट चेक करते। z 7 रियल या इमेजिनरी? रियल। रियल है ये रहा। पॉजिटिव है यस, तो थीटा इज 0। सम ओवर, आर्गुमेंट 0 आ गया, दैट्स ऑल। z is equal to minus 2021. Real? Yes, because of I not present. Real है और नेगेटिव है, so that answer pi. Argument is pi. That's all. Number 3, z is minus 7i. Real और imaginary? Imaginary क्योंकि I के साथ है, real तो है ही नहीं। I के साथ है और भी नेगेटिव है, I के साथ है और नेगेटिव है। What's answer? Direct answer minus pi by 2. Z is equal to minus 1 minus I.
रियल भी है इमेजिनरी भी है, मतलब इसको उठा लेंगे। डायरेक्ट tan अल्फा निकालिए, y upon x, what is x, what is y, come on friends, x is -1 Y is and y is also -1. -1. x and y both are -1, -1 upon -1 is 1 and 1 का mod 1 होता है, और tan अल्फा 1 कब आता है, π/4 अल्फा का वैल्यू π/4 आया है, π/4 आया है। क्वाड्रेंट कौन सा है, x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट है, तो आपका आंसर है -π plus π/4, that's all, your final answer is -3 π/4. so आर्गुमेंट निकालने का ये डायरेक्ट मेथड, आपको फुल्ली सॉल्व नहीं करने का सम, अगर आप जी सॉल्व कर रहे हैं, x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, x और y की वैल्यू आएगी, मुझे अल्फा मिल जाएगा, अल्फा के वैल्यू मैं क्वाड्रेंट में डाल दूंगा, क्वाड्रेंट कैसे डिसाइड करूंगा, x और y चेक करूंगा ना, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, ऐसा तो थर्ड में होता है, थर्ड में अल्फा के वैल्यू ट्रांसफर किया तो आपको आर्गुमेंट डायरेक्ट मिल गया। ये पिक्चर रहेगा आपको जब आप जेई सॉल्व करते हैं, आर्गुमेंट फाइंड आउट करते समय। ओके, सो 26 में मैंने ये सब कुछ क्यों याद किया, व्हाई, प्लीज सर, उसने पूछा है व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ z बार इक्वल टू, व्हाट इज द z बार, स्क्रीनशॉट प्लीज। एनी क्वेरी फ्रेंड्स, इस पिक्चर में कोई डाउट है आपको? यस, No, sir. नो डाउट, No, sir. ओके। 26 नंबर, z बार क्या होता है? ओके, z is x plus iy, suppose, so what is z bar beta? x minus iy, which quadrant? Second quadrant, second quadrant, what's the formula? Pi minus 5 minus. theta, so what's the answer? Pi minus कौन सा फॉर्मूला है बेटा? ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद, बी बॉम्बे, डी दिल्ली और सी कलकत्ता, what's the answer बेटा? ऑप्शन ए अहमदाबाद, पाई माइनस आर्गुमेंट ऑफ z। अगर मैं z को x प्लस आई वाई लेता हूं तो z बार क्या आएगा? x माइनस आई वाई। वाई x माइनस आई वाई, कंजुगेट मींस i का साइन चेंज, तो फर्स्ट से सम का पहुंच जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में व्हाट्स आंसर? पाई माइनस। एंड आप जनरली भी अगर सोचे तो ऑलवेज जो आंसर होता है वो माइनस पाई और पाई के बीच में होता है, पाई से बड़ा नहीं होना चाहिए। 2 पाई माइनस पाई प्लस एंड 2 पाई प्लस, जो ऑप्शन बी सी एंड डी है वो पाई से ज्यादा आंसर दे सकते हैं, और हमारा आर्गुमेंट पाई से ज्यादा नहीं हो सकता। सेम नॉलेज आप इस 32 में अप्लाई करेंगे। प्लीज एक्ट नंबर 32। The question is Z1 and Z2, we have a two complex number with the real number alpha and beta, where alpha plus beta addition greater than pi है। So argument of Z1 Z2 given by what? आप खुद चेक कर सकते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो लेस देन पाई आंसर देगा। क्या ऑप्शन ए देगा? नो। पाई नो, बिकॉज अब अल्फा प्लस बीटा का आंसर पाई से बड़ा है, पाई से बड़े वाले आंसर को पाई में ऐड करूंगा तो आंसर पाई से और भी बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात करेंगे तो 2 पाई प्लस समथिंग पाई से काफी बड़ा हो जाएगा। एंड ऑप्शन डी रॉन्ग है, बिकॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज गिवन ग्रेटर देन पाई। सो एक ही ऑप्शन बचता है मेरे पास, बी बॉम्बे, जिसमें वो एडिशन करके लेस देन पाई आंसर दे देगा, बिकॉज ऑफ आपको माइनस पाई करना है। सो 32 नंबर का आंसर क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस पाई। 26 नंबर का आंसर क्या आएगा? पाई माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थियरी कि जो आर्गुमेंट होता है वो पाई से छोटा होना चाहिए, पाई को वो क्रॉस नहीं कर सकता। एनी क्वेरी फ्रेंड्स? 26 32 नंबर, यस No, sir. नो डाउट। 27 नंबर प्लीज। मेरी आवाज आ रही है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. यस सम नंबर Yes, sir. 27 रीड कर लीजिए। आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 1 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 3i। सबसे पहले सम नंबर 27 में z सपोज किया x प्लस आई वाई। नाउ फाइंड आउट two values. The first is z minus 1. How to find z is x plus iy minus 1.
So x minus 1 plus iy. And the second complex number is z plus 3i. So x plus iy plus 3i. Real part x, इन दोनों में से i कॉमन. मैंने आपको अभी सिखाया आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 1. क्या फॉर्मूला था बेटा? डायरेक्ट फॉर्मूला क्या सीखा आपने? tan थीटा क्या होता है? y अपॉन y x, upon x. मतलब इमेजिनरी अपॉन रियल. The same thing here. What is the argument of z plus 3i? Tan theta y plus y is y plus 3 और रियल इज x. दोनों के दोनों tan थीटा है, कंपेयर कर लीजिए. So y upon x minus 1 equal to, we can say, y plus 3 upon x. एक आर्गुमेंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसा मैंने मान लिया. क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट माना? क्योंकि सम मॉड्यूलस में था. मॉड्यूलस आएगा तो आंसर प्लस और माइनस दोनों आएंगे, और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लूंगा तो आंसर ऑलवेज किस में रखूंगा मैं? पॉजिटिव में. आप चाहें तो ये सम सेकंड में भी कर सकते हैं, थर्ड में भी कर सकते हैं, फोर्थ में भी कर सकते हैं, एज यू विश, आपकी मर्जी है. बेटर क्या? बेटर है फर्स्ट ऑप्शन, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव है. तो ये मॉड्यूलस दोनों का चला गया, कंपेयर किया. अभी जस्ट आपको क्रॉस करना है और कुछ. जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्लीज. y into x, क्रॉस प्लीज. xy plus 3x minus y minus 3. xy कैंसिल. क्या मांगता है उसको? उसको x माइनस वाई अपॉन वाई चाहिए. ठीक है, अभी आपके पास क्या आया आंसर जरा देखें. 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 आया. इन दोनों में से 3 कॉमन. x माइनस वाई माइनस वाई इक्वल टू 0 आया. 3x माइनस वाई इक्वल टू वाई आया. x माइनस वाई के अपॉन में y को लिया तो सामने 1/3 हो गया. आपको पता है ये रेशियो 1:3. You want this x minus y raised to y. Your answer is 1:3. कौन सा ऑप्शन मैच होता है? बी, बॉम्बे. तो यहाँ पर मैंने नया वाला आर्गुमेंट यूज किया जिससे फटाफट आंसर आया. और अगर मैं टेक्स्ट बुक आंसर यूज करता हूँ आर्गुमेंट वाला, बहुत टफ हो जाएगा. सम काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा जो कैलकुलेशन में बहुत आपको हार्ड पड़ेगा. सो नया वाला सिस्टम यूज करते हैं. tan थीटा इज इमेजिनरी अपॉन रियल इन मॉड. मॉड के लिए मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में सम सॉल्व किया. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? सम नंबर 27 सम किया. Yes. स्क्रीनशॉट प्लीज. 28 नंबर नेक्स्ट टाइम सिखाऊंगा क्योंकि मैंने आपको पोलर फॉर्म का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं सिखाया. चलो स्टार्ट सिखा देता हूँ. आएगा आएगा, मैंने सिखाया है ना पोलर फॉर्म आपको. यस सिखाया. Yes. चलिए पोलर फॉर्म क्या था? पोलर फॉर्म था z is equal to r cos theta plus I sin theta. Am I right? Yes. So 28 number, let z1 is r cos theta 1 I sin theta 1 and z2 is r cos theta 2 plus I sin theta 2. ये दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, फिर भी मैंने इसमें R1 और R2 को सेम लिया. उसने लिखा हुआ 28 में Z1 एंड Z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड्यूलस सेम. मॉड्यूलस सेम मतलब दोनों का R सेम हुआ कि नहीं हुआ? पहले वाले का एंगल θ1 है, दूसरे वाले का एंगल θ2 है. तो ये जो रियल फॉर्म है उसमें थीटा की जगह θ1 यूज किया तो Z1 बन गया, θ2 यूज किया तो Z2 बन गया. दोनों में R सेम लिया क्योंकि दोनों का मॉड्यूलस सेम दिया गया है. अब क्या आपको एक कंडीशन दी गई है. कंडीशन है कि भाई θ1 प्लस θ2 वो तो पाई है. कहां लिखा है? प्लीज चेक योर क्वेश्चन. आर्गुमेंट ऑफ Z1 का जो आर्गुमेंट θ1 है वो, और Z2 का जो आर्गुमेंट है θ2 वो, उन दोनों का एडिशन पाई है. तो θ2 को मैं पाई माइनस θ1 लिख सकता हूं ना? यस. चलिए स्टार्ट करते हैं.
थीटा 2 के प्लेस पर मैं लिख सकता हूं पाई माइनस थीटा 1, थीटा 2 के प्लेस पर मैं लिख सकता हूं पाई माइनस थीटा 1. ओके, पाई मींस फंक्शन नॉट चेंज, वी नो वेल, माइनस and pi minus second quadrant में cos negative, right? यस Plus I sin pi minus pi वाला function not change, pi minus something second quadrant में sin positive, minus कॉमन ले लीजिए, ये आया cos theta 1 minus I sin theta 1. yes or no बेटा? क्या ये आपके लिए Z1 बार नहीं है? This is our Z1. What is the conjugate of Z1 बार? I का साइन चेंज कर दो, प्लस से जगह क्या आएगा माइनस, वही तो आया, ये तो आपके लिए Z1 बार है. तो Z2 का आंसर कितना आया? माइनस में Z1 बार. उसको क्या चाहिए बेटा? उसको क्या चाहिए? उसको Z1 चाहिए या Z2 चाहिए? Z1 Z1 चाहिए. मतलब मुझे अगेन टेकिंग कंजुगेट बोथ द साइड, Z2 का कंजुगेट किया, कंजुगेट का कंजुगेट हो गया. अभी मैंने आपको सिखाया कंजुगेट का कंजुगेट क्या होता है, क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसका जो माइनस है उसको सामने भेज दो. तो अब Z1 मिल गया आपको. बट Z1 माइनस में Z2 बार है, ऐसा कोई ऑप्शन मेरे पास? यस, सी कलकत्ता. सो ये जो सम है, ये सब कुछ प्रॉपर्टीज दी जाती है, उसको हिसाब से करने आपको. फुल लेंथ में सम सॉल्व करने बैठेंगे तो लग जाएगी. बोलिए फ्रेंड्स, 28 नंबर सम क्लियर? एनी क्वेरी? नो. ओके, 29 नंबर होमवर्क है आपका. जस्ट z और z स्क्वायर फाइंड करके वैल्यू रखना है और उसका कंजुगेट लेना है, फिर उसका मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है आपको. मतलब आप सम नंबर 29 में f ऑफ z को सबसे पहले x प्लस आई वाई फॉर्म में लेके आओगे, फिर उसका मॉड्यूलस फाइंड आउट करोगे. राइट, जस्ट ट्राई फ्रेंड्स, जैसे सम नंबर 12 में किया. सम नंबर 12 में जो प्रोसेस किया, द सेम थिंग आपको नंबर 29 में करना है. 12 में आपको कंजुगेट फाइंड आउट करना था और यहाँ पर आपको मॉड्यूलस फाइंड करना है. तो सबसे पहले सम को रियल फॉर्म में लेके आओ, a प्लस बी आई फॉर्म में, फिर उसका मॉड्यूलस फाइंड आउट करना. सो 29 इज योर होमवर्क, जस्ट ट्राई. क्वेश्चन नंबर 28 का स्क्रीनशॉट ले लो एंड 30 सम रीड करो. tan इनवर्स अल्फा प्लस आई बीटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये. tan इनवर्स अल्फा प्लस आई बीटा is given x plus iy. So only alpha plus I beta, ये tan इनवर्स हो जाएगा तो tan हो जाएगा. 12 साइंस में आपको सिखाया जाएगा, ऐसा होता है. tan इनवर्स सामने जाएगा तो tan हो जाएगा. टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड, कंजुगेट का मतलब होता है i का साइन चेंज. अल्फा प्लस आई बीटा है तो अल्फा माइनस आई बीटा हो जाएगा. x प्लस आई वाई है तो माइनस आई वाई हो जाएगा. मुझे क्या फाइंड करना है? व्हाट यू वांट फ्रेंड्स? यू वांट x. ओके, चलो एक अरेंजमेंट करते हैं. tan 2x की जगह मैं x प्लस आई वाई, x माइनस आई वाई, क्या ऐसा लिख सकता हूं? यस, व्हाई नॉट. x प्लस x इज 2x प्लस आई वाई माइनस आई वाई कैंसिल. मतलब मैं 2x को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता. और मेरे लिए ये ग्रीको का एक फॉर्मूला है. कौन सा फॉर्मूला है? tan अल्फा प्लस बीटा. यस और नो? दिस इज tan अल्फा yes sir प्लस में tan बीटा 1 minus tan alpha minus tan alpha into tan beta. into tan beta. बट tan x प्लस आई वाई, tan x प्लस आई वाई का आंसर तो अल्फा प्लस आई बीटा है. tan x माइनस आई वाई का आंसर अल्फा माइनस आई बीटा है. 1 माइनस द सेम थिंग यार, इसका आंसर अल्फा प्लस आई बीटा है और इसका आंसर अल्फा माइनस आई बीटा है. राइट फ्रेंड्स, सो tan का वैल्यू रख दिया आपने.
Now the next line, tan 2x is equal to, please add, ये cancel, alpha plus alpha is 2 alpha. And just multiply please. देखिए उसका multiplication क्या आता है? साइड में सॉल्व करते हैं. 1 minus alpha plus I beta. Alpha minus I beta. Alpha into alpha, alpha square, alpha into this, alpha beta I. This is your alpha beta I. Minus में I square beta square. Alpha square ये cancel. Minus I square is a 1, तो plus beta square. So 1 minus alpha square minus beta square आएगा. Okay. यहाँ नीचे आएगा 1 minus alpha square beta square. आप देख सकते हैं, मैंने आपसे कहा tan सामने जाएगा तो क्या होगा? जब tan इनवर्स सामने गया तो tan हो गया. tan वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स? tan इनवर्स कितना? 2 alpha upon 1 minus alpha square minus beta square. We want only x. तो 2 को भी सामने भेज दो. 1 by 2 tan inverse 2 alpha 1 minus alpha square minus beta square. That's all. Your question, find the value of x. This is your answer. कौन सा ऑप्शन मैच होता है? ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद. Done friends. Question number 30 clear. Any query? Sure. Oh, sir. Screenshot please. सर और कितने सम्स कराओगे? बस लास्ट क्वेश्चन बेटा 31. Z bar is a conjugate of the complex number, then which of the following relation is false? False मतलब कौन है जो पॉसिबल नहीं है? आपको मैंने सब कुछ लिखा हुआ है. क्या ऑप्शन ए सही है? Yes or no? ऑप्शन ए is a property. Mod Z equal to mod Z bar होता है. Option B is also property. Z into Z bar always a mod Z square. And option C is a property जो मैंने आपको आज भी याद दिलाई. Z1 plus Z2 complete bar is equal to individual bar होता है. तो कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो रॉन्ग है? Argument of Z is not equal to argument of Z bar. आपके लिए ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन बी राइट है, ऑप्शन सी राइट है. तो कौन सा ऑप्शन बच गया बेटा? Option D. Option B. ऑप्शन डी बच गया. राइट. सो कॉम्प्लेक्स नंबर अप टू 32 सम क्लियर. नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसकी मैं एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज और एक्स्ट्रा सम्स और भी समझाऊंगा जो हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिए हुए. अमृत रिकॉर्डिंग बंद कर देना.